Hello everyone, welcome to the channel Kashif Scientist. This is your host Shahid Farooq, and today we'll be taking our second chapter of the mathematics series, that is polynomials. And till now we have covered our first unit that was based on the real numbers, and we discussed that about the questions about Olympiads, boards, NCERT, etc. And today we will be discussing our second chapter, that is polynomials. And the contents of this lecture will be, first we will be covering the definition of the polynomials, then moving on to the basics of polynomials, different types of polynomials, and we will be discussing what are the zeros of a polynomial. These are the lecture contents that we will be discussing in this module today. So starting with the definition of polynomial, what polynomial is, although you have already studied polynomial not in much detail in your class 9, लेकिन फिर भी आप इससे वाकिफ़ है कि पॉलिनोमियल होते क्या है। हमने 9th में पढ़ा है, हमारे 9th के मैथमेटिक्स में, कि पॉलिनोमियल क्या होता है। इन दिस वी से दैट पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बट polynomial is a mathematical expression consisting of variables raised to non-negative integer powers। तो हम बोलते हैं कि polynomial एक ऐसी mathematical expression है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनका जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक तो वो इंटीजर होता है, दूसरा नॉन नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं 2x, दैट इज अ पॉलिनोमियल, सिंगल टर्म पॉलिनोमियल है, या जिसको हम मोनोमियल भी बोलते हैं। इसी तरह 4x² plus 5x, that is also a polynomial because the power of the variable x is integer and it is a non-negative value. Similarly, we can take any example. For example, 9x cube plus 5x² plus 3x plus 4, that is also a polynomial because the powers of the variable is non-negative integer. This is how we define what a polynomial is. It is made up of terms that are only added, subtracted or multiplied. और polynomial की हर एक जो term होती है, that may consist of either a constant or that is the combination of a constant and a variable. And the variable, इसके variable के सामने जो ये constant होता है, this is called the coefficient of the variable. That is called coefficient. इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसी तरह हर एक टर्म जो है दैट इज ओनली या तो एडेड होगी, सब्ट्रैक्टेड होगी या मल्टीप्लाइड होगी। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट ए पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ। एंड जनरली हम पॉलिनोमियल्स को डिनोट कैसे करते हैं, जनरल फॉर्म जो है दैट इज वी राइट पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वायर एक्स इज अ वेरिएबल, मतलब एक्स का वेरिएबल एक्स का एक पॉलिनोमियल है, वी राइट इट एज इट इज ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड अप टू सो ऑन प्लस ए जीरो तक, वेयर ए जीरो इज द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। और हर एक टर्म में जो है ए एन जो है ये कोएफिशिएंट है, एक्स इज अ वेरिएबल रेज्ड टू सम पावर एन। दिस इज हाउ वी जनरली डिनोट द पॉलिनोमियल। और हर एक जो इसकी टर्म होती है, दिस हर एक जो एक्सप्रेशन है, हम इसको बोलते हैं दीज आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यह था हमारा बेसिक सी डेफिनेशन। ऑलरेडी आप इतना तो जानते ही होंगे पॉलिनोमियल्स में ये पॉलिनोमियल होता क्या है, कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती है पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, वो आगे जाके हम और भी डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टिल आई थिंक ये इतना सारा आपने 9th क्लास में कवर किया और आप ये सब इतनी बेसिक जानते हैं। तो फ्रॉम डेफिनेशन वी विल बी मूविंग ऑन टू द बेसिक्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। नाउ हमने अब जाना कि कोई भी expression, mathematical expression that contains some variable is raised to some power, that power is non-negative integer। for example, मैं आपके सामने लूँ, मैंने लिया 4x² plus 3x plus 2, I wrote this polynomial। now we know this is a polynomial, why? because the exponent of variable is a non-negative integer। तो मैंने बोला कि ये एक polynomial है। now what is degree of this polynomial? The highest exponent of the variable in the polynomial is called the degree of the polynomial। अब मेरे पास जो ये polynomial है, इसमें variable क्या है? variable is x। मैं बोलता हूँ कि हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है
मतलब यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x की पावर 0 है। वाई? बिकॉज x टू द पावर 0 इज 1, बिकॉज एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1 बाई कन्वेंशन। सो हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पावर जो इस वेरिएबल में है, इस पॉलिनोमियल में है किसका? वेरिएबल x का, दैट इज 2, दैट इज 2। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। सिमिलरली अगर मैं और एक एग्जांपल लूँ आपके सामने, 9x क्यूब प्लस 6x plus 3. This is again a polynomial because the powers are non-negative integers and the highest power of the polynomial is 3. So this is of the degree, this is degree 3 polynomial. Similarly और एक एग्जांपल अगर मैं लूँ 5x to the power 6 plus 6x power 4 plus 5, this is of the degree 6 because the highest exponent is 6 in this polynomial. And if we have a constant, term, for example this, we can also say this is a polynomial of degree 0. This is 0 degree. The degree of a non-zero constant polynomial is 0. मैं बोलता हूँ कि why? Because मैं इसको लिख सकता हूँ 5x to the power 0. So डिग्री इसमें क्या हो गई? इसकी डिग्री 0 हो गई। एंड द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल 0, अगर मेरे पास अब कोई पॉलिनोमियल 0 ही है, मैं बोलता हूँ दिस कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड, हम इसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। वी से दैट इट इज 0 पॉलिनोमियल एंड इसकी जो डिग्री होती है दैट इज अनडिफाइंड। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज undefined. This was some of the basics that you already may know from your previous class 9th कि डिग्री क्या होती है, व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल, व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिमिलरली मैं मोनोमियल की बात करूं तो मोनोमियल क्या होता है? इफ द पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली सिंगल टर्म वी से दैट इट इज ए मोनोमियल। और इसी तरह बाइनोमियल वगैरह जिसमें डिफरेंट टर्म्स हो, हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। Moving on to the types of polynomial based on the degree of polynomial. हम types बोलते हैं किस basis पे? On the basis of degree. On the basis of degree of polynomial. Degree of the polynomial. अगर मेरे polynomial की डिग्री 1 है, if the degree of my polynomial is 1, we say that it is called the linear polynomial. When degree is, जब मेरे polynomial की डिग्री 1 है, we say that it is a linear polynomial. For example 4x, this is linear polynomial. 5x plus 1, that is a linear polynomial. इसी तरह 6x plus 2, that is linear polynomial because the highest power of the variable x is, that is 1. तो मैं बोलता हूँ कि this is what? लीनियर पॉलिनोमियल। और इसी तरह दूसरी जो ये टाइप है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? इफ द डिग्री इज 2, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, वी से दैट इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 की एग्जांपल अगर हम लिखे, वी कैन राइट 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दैट इज ए डिग्री 2 पॉलिनोमियल, और वी कैन से दैट इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह 8x स्क्वायर प्लस 2, 5x स्क्वायर, these all are what? Polynomials of degree 2, and so we can say that these are all quadratic polynomials. इसी तरह cubic polynomial is a polynomial with degree 3. Cubic polynomial is a polynomial of degree 3. अगर मेरे पास कोई polynomial है, for example मैं लिखूं 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, कॉन्स्टेंट टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। दिस इज a polynomial of degree 3 because the highest exponent is 3, so I can say that it is a cubic polynomial. What? It is a cubic polynomial. इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह हम बाई क्वाड्रेटिक वगैरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर वही प्ले विद दीज 3 types of polynomials, that is quadratic, that is linear, then quadratic,
and then cubic. These are the three types of polynomials that we mainly focus on. इसी तरह ये था हमारा तीसरा टॉपिक जो हमने इसमें कवर किया। इतना भी बड़ा वो नहीं है, ये इतनी चीज़ें आप पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए, ताकि हमें आगे जो आने वाले टॉपिक्स है, आने वाले लेक्चर्स है, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बेसिक्स फिर से कवर करना है। आपका बेसिक्स फिर से ब्रशअप करने के लिए मैंने ये सब आपको फिर से रिवाइज करा दिया है। इसी तरह नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट आर द zeros ऑफ ए पॉलिनोमियल। सॉरी, लेट अस डिस्कस व्हाट आर द zeros ऑफ पॉलिनोमियल। Zeros of a polynomial. That is what we will be discussing. If, for example, I have a polynomial 5x plus 3 equal to 0, अगर मैं 5x plus 3 ही लिखिए, मेरे पास ये polynomial है p of x that is equal to 5x plus 3 and I need to find the value of the polynomial at x equal to 2. मुझे x equal to 2 पे polynomial का value find करना है. So how can I find that? I will substitute 2 in place of x in the above. So I can write as 5 into 2 plus 3. That is 5 2s are 10 plus 3, that will be 13. So the value of, I can say that the value of p of x at x equal to 2 is what? At x equal to 2 is 13. We say that it is the value of polynomial at 2. Polynomial at x equal to 2. इसी तरह मैं किसी भी वैल्यू x को कोई भी वैल्यू दे सकता हूं एंड आई कैन फाइंड दैट वैल्यू. नाउ अगर मैं चाहता हूं कि मैं अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? व्हेन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट सम वैल्यू, जब मैं किसी वैल्यू पे x का दिस p ऑफ x का वैल्यू फाइंड करता हूं एंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी जीरो, सो जब जिस वैल्यू ऑफ x पे मुझे इस p ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा. मैं बोलता हूं दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यही लिखूं 2x प्लस 2x माइनस 2, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है. व्हाट? 2x माइनस 2 इज ए पॉलिनोमियल दैट आई हैव. नाउ मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है सो दैट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो. So the value of expression becomes 0. That value of x for which this expression is value becomes 0, I say that value of x is called the zero of the polynomial p of x. वो फाइंड करने के लिए, फॉर एग्जांपल, मैं x का वैल्यू अगर 1 देता हूँ, that will be 2 into 1 minus 2. What will be that? 2 into 1 is 2 minus 2, वो 0 हो गया. So I can say that x equal to 1, this 2x minus 2 has a 0 at x equal to 1. At x equal to 1. So मैं कह सकता हूँ कि इसके जो zeros है that is x equal to 1 is the zero of the polynomial 2x minus 2. ये मेरा zero है किस polynomial के लिए? 2x minus 2. This is what we call the zeros of a polynomial. अब पॉलिनोमियल के, हर एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? इफ आई हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज ऑफ डिग्री 1, उसके एट मोस्ट 1 ही जीरोज होंगे. एट मोस्ट जीरोज होंगे कितने? जितनी डिग्री है. जितनी डिग्री है एक पॉलिनोमियल की, एट मोस्ट उसके पास उतने ही जीरोज होंगे. दैट मीन्स अगर मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है दैट विल हैव एट मोस्ट 1 0. इसी तरह अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट विल हैव एट मोस्ट 2 0. इसी तरह अगर मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है दैट विल हैव एट मोस्ट 3. दैट मीन्स इट कैन हैव 3, इट कैन हैव 2, इट कैन हैव 1 आल्सो. आइदर 3 होंगे, 2 होंगे या 1 ही होगा. लेकिन एट मोस्ट मैक्सिमम वैल्यू जो होगा जीरोज का, दैट नॉट वैल्यू ऑफ जीरोज बल्कि नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3 फॉर क्यूबिक, सिमिलरली फॉर 2 फॉर क्वाड्रेटिक and 1 for the linear polynomial. Now if I have to
find what will be the value of the zero of a linear polynomial. For example, if I have a general linear polynomial ax plus b, and I have to find the value of 0 for this polynomial, that will be equal to, if I equate equal to 0, that means उस टाइम पे मेरा जब वैल्यू 0 होगा, I will call that value to be, that value of x will be the 0 of this polynomial. So I can rearrange this. I can find that the value of a, this x will be minus b by a. This is the only 0 of a linear polynomial equal to, that means अगर मेरे पास कोई भी linear polynomial 5x plus 2 है, इसका जो 0 होगा that will be minus b divided by a. Minus b, that is minus 2 divided by a, that is 5. Minus 2 by 5 will be the only 0 of this linear polynomial, this 5x plus 2. Or in general, x equal to minus b by a will be the only 0 of the linear polynomial ax plus b. This is how we find the linear polynomials zeros. In the coming lectures, we will be discussing what will be the general form of the zeros of quadratic polynomial and cubic polynomials, and we will be discussing what is the geometric representation और geometrically ये क्या represent करते हैं, मतलब जो भी हम zeros निकालते हैं whether of a linear polynomial, whether they are of quadratic or cubic polynomial, what they represent geometrically, that we will be discussing, and that is the part of the 10th mathematics polynomial. From that very lecture we will be starting our course of 10th, जिसमें हम 10th अभी तक हमने जो भी कल ये आज पढ़ा, that was from basics, that was from the 9th itself, so that आपके जो पिछले कॉन्सेप्ट्स है पॉलिनोमियल्स के वो ब्रश अप हो जाए, एंड यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. और आगे से हम जो हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा आने वाले हफ्ते में, तो उसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, एंड वी विल बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस क्या होती है, तीनों टाइप्स के पॉलिनोमियल्स के, एंड वी विल बी सीइंग सम क्वेश्चंस ऑन दैट. टिल देन आप इन सारे जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है इस पे कुछ क्वेश्चंस कीजिए, बेसिक उसको ब्रश अप कीजिए, एंड आई होप कि आप नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे यू विल बी रेडी टू फेस द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स. एंड टिल देन आई होप कि आप ये जो हमें कंटेंट दे रहे हैं इससे आपको ये आइडिया मिलता होगा कि हमें एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आए होंगे, क्योंकि पिछले चैप्टर में भी हमने देखा कि क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, उसके बाद पेपर पैटर्न भी बोला किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी मार्क्स द चैप्टर इज कवरिंग. We have all covered that, and for this chapter also we will be covering that also. तो so till then आप ये वाले लेक्चर को अच्छे से देखिए, स्टूडेंट अपने जो फ्रेंड्स वगैरह है उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फैज़याब हो जाए. एंड आई होप कि अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले लेक्चर में, दैट विल बी ऑल्सो बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल्स, एंड वी विल बी डिस्कसिंग द more concepts about that and doing some questions as well. Till then, take care and goodbye.